Mr. Amit Pajoshi, thank you so much, sir, for doing this episode. Thank you. Thank you. My pleasure. I'll start with a very simple question. 20s में कोई ऐसी सोच, कोई आइडिया जो completely outgrow कर चुके हो आप? And if yes, what has replaced it? Well, as in, my philosophy is that nothing outgrows. As in, जो भी पुराने सोच होते हैं वो हमेशा रहते हैं. It gives you experience. While the moments changes, as in from the Walkman to the iPods to now Spotify on phone, technology has changed. But every session has some experience. तो हर मौका कुछ experience सिखाता है. Nothing outgrows. So we जो go पहला back. आइडिया था वही चल रहा है, बस अब न्यू इनोवेशन न्यू से. इनोवेशंस हो रहे हैं, Right. न्यू एक्सपीरियंस हो रहे हैं, हाउ वी कैन मेक इट मोर एफिशिएंट एंड सो ऑन सो फोर्थ. Absolutely, absolutely. Have you ever come across a grassroots idea or solution that truly amazed you? So many, as in if you Of talk course, about yeah. talk about India, as in it's land of innovations. Absolutely, आप सोच लीजिए, मेडिसिन से लेके पाई से लेके अभी डीपीआई, द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड देयर आर सो मेनी. बट But if you had to choose one, चूज़ वन. रिसेंटली अगर मैं देखा जो आई क्लोजली फॉलो आइडिया ऑफ रंगदे दे आर कुछ ट्राई कर रहे हैं कि मिसिंग द मिडिल को सॉल्व करें. जो छोटे छोटे हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं या फार्मर्स हैं उनका फिनेंशियल नीड्स को सॉल्व करें. सो आई एम एक्साइटेड. आई एम फॉलोइंग देम हाउ दे आर डूइंग. सो Okay. दैट्स व्हाट एक्साइट्स मी. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग yeah, sounds like it. स्पेस जो वो प्ले कर रहे हैं. Let's say आपके पास कोई स्टूडेंट आके कहे, I want money and impact, but where do I start? आप उसको क्या एडवाइस देंगे? Look, मेरे as in during my career I have worked in multiple different sectors, starting from government sector, then working with the big fours, and now with impact firm called Palladium. And I have seen that it is not that a particular sector is known for a money or impact. Both can be achieved. All these three different टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ एंटिटीज़ हैव देयर इन ओन वे इम्पैक्ट. अगर मान लीजिए मैं गवर्नमेंट में काम जब कर रहा था, आई वॉज वर्किंग विद द सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया. दे हैव इट्स ओन इम्पैक्ट इन सेटिंग अप गवर्नेंस मैकेनिज्म कि सभी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को प्रॉपरली ऑडिट किया जाए, मैट्रिक्स हुआ जाए. और इन अ पैरेलल्स वी कैन से मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन मैकेनिज्म वेरी स्ट्रॉन्ग था, ऑडिट मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग था. एंड फॉर दैट मैटर अगर आप कोई भी कंसल्टिंग मैनेजमेंट कंसल्टिंग फॉर्म में जाते हैं, द प्रोसेसेस दिस सेट क्रिएट्स ए इम्पैक्ट इन ब्रिंगिंग एफिशिएंसीज एंड सो ऑन सो फोर्थ. और नाउ फॉर दैट मैटर अगर as Palladium global impact firm which works at the intersection of commercial growth and social progress, social sector में grassroots level में impact में focus है. So every sector, every industry has its own impact parameters, and accordingly they see that the money and the impact flows together on that. Your organization is very well respected, and of course, me being in this sector, I understand what your organization does. But I want you to explain a bit that what is it that you're working on, what is it that Palladium is doing, so that our viewers also get to, they also understand what is it that you're doing. So Palladium is a social impact firm. Yeah. Working at the confluence of commercial and social progress. In a nutshell, we are a social sector consulting firm working to create lasting, large-scale, sustainable impact. And across sectors which are in the social domain, whether it is education, health, disaster management, forest, for that matter, and so on and so forth. It's been almost 60 odd years doing the impact business, working with clients, whether it is donor agencies, whether it is the bilateral donors or multilateral donors, whether it is specific governments, in that case in India. It's been almost 25 years right now. So 25 साल से इंडिया में काम कर रहे हैं. प्रिडोमिनेंटली हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इकोनॉमिक ग्रोथ सेक्शन में, लाइवलीहुड सेक्शन में हम ज़्यादा भी काम कर रहे हैं. रिसेंटली हैव स्टार्टेड इन डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट रेजिलियंस पार्ट. All the major sectors you have covered. That's the development sector which we Yes. call generally. Yes, right. जैसे as you mentioned earlier, आपका जो करियर है बहुत फैसिनेटिंग है. आप पहले गवर्नमेंट में थे, देन आप प्राइवेट कंसल्टिंग में थे, फिर आप एडटेक में भी थे, आई थिंक.
It was not an EdTech, it was part of a project which has a EdTech ओके solution. ओके, बट समवॉट आपको उसका भी आइडिया है. Yes, yes. फिर आप अभी सीईओ भी है, तो इस शिफ्ट के बारे में आपका कैसे सोच बनी, क्या ऐसा एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? Yeah, the journey has been fascinating. As I always believe, every part of the journey, जैसे हम जैसे I हम would also, I'm so sorry to interrupt, I would also like to know what part of it did you enjoy the most? ओके एज इन अगर आप लंबे मैराथन भागते हैं तो देर आर स्मॉल स्निपेट्स विद इन द मैराथन, सो Yeah. इट्स लाइक दैट, एज इन यू कैन डिस्क्राइब विच पार्ट इज़ द बेस्ट वन, बट एवरी पार्ट, हर एक पार्ट एक एक एक्सपीरियंस देता है. वेदर इट इज़ गवर्नमेंट में द स्ट्रॉन्ग एम्बेडेड प्रोसेस विच हैज़ बीन देयर फॉर सो लॉन्ग ईयर्स, दैट इट सेल्फ गिव्स यू ए ग्रेट लर्निंग देता है. प्राइवेट सेक्टर, द एजिलिटी, दैट फोकस ऑन परफॉर्मेंस, फोकस ऑन मैट्रिक्स ड्रिवन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लर्निंग देता है. सो out and out, it has been a fantastic experience learning from both the government side and being in the other side of the table since last 20 odd years. राइट, ओके. बट आर यू श्योर कि इसमें कुछ भी आपका एक ऐसे फेवरेट नहीं है? As in, I am enjoying my stint right now as Okay. CEO of Palladium. Right, Reason behind कि ऐसा नहीं कि what I was doing I was not enjoying, but the kind of work we are doing in Palladium in India and what we have done globally is fascinating. But individually, maybe is it because you have your own command now? You're able to implement your ideas the way you want to. To a extent, definitely yes, and the agility the organization gives to experiment, take risk, do that scale of change at a speed, and dare to do something which would achieve a sustainable, lasting impact. So yes, at this moment, this is my favorite spot. अंडरस्टूड. सर, जब आप सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम्स की बात करते हैं तो ग्राउंड लेवल पे वो एग्जैक्टली कैसे दिखता है? हर गांव की अपनी डेफिनेशन होती है सक्सेस की, उसको आप कैसे अलाइन करते हो पैलेडियम के विजन के साथ? नो, गांव हो, शहर हो, और कोई भी क्लाइंट हो, हर एक चीज़ का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. नो एज एन क्लाइंट और अ विलेज और अ अर्बन इज कैन बी फिट इनटू वन बॉक्स. हाउएवर फ्रेमवर्क सेम होता है. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ एक डिफाइंड फ्रेमवर्क होता है, उसको हम क्यूरेट करते हैं इन रिगार्ड्स टू व्हाट इज़ द नीड ऑफ द आवर फॉर दैट रेस्पेक्टिव जियोग्राफी और अ क्लाइंट और अ विलेज एंड सो ऑन सो फॉर्थ. मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. जब हम एक प्रोग्राम हम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग द एपीओज इकोसिस्टम इन ओडिशा, वी डिज़ाइन दैट प्रोग्राम विच वी हैड enough global experience managing such large programs globally, but that would not fit कि इंडिया के एपीओ इकोसिस्टम में शायद फिट ना हो. बट फ्रेमवर्क सही है कि जो भी हम प्रोग्राम डिज़ाइन करें, इट हैज़ टू बी मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच. राइट. क्योंकि और मार्केट ही नहीं है तो मेरे फार्मर्स बेचेंगे कहाँ पे? तो मार्केट सिस्टम लेड अप्रोच विच इज़ अ फ्रेमवर्क हम ग्लोबली हर प्रोजेक्ट में फॉलो करते हैं. ओके. चाहे एंटरप्रेन्योर्स का हो या एपीओस का हो, मार्केट सिस्टम बेस्ड अप्रोच आप देखिए. सो वो एक फ्रेमवर्क है, वो फिट हर जगह होगा, बट इट हैज़ टू बी क्यूरेटेड. उसको ऑपरेशनलाइज कैसे करें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, या जो प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं उड़ीसा में, नॉर्थ ईस्ट में या महाराष्ट्र में, उसको ऑपरेशनलाइज कैसे करें. सेकेंड फ्रेमवर्क की कोई भी आप डिज़ाइन कर रहे हैं प्रोग्राम, द बेनिफिशियरी शुड बी एट द कोर. उसको ओनर बनना है. वी ऑल आर कैटलिस्ट. उसको ओनर बनना है. दैट फ्रेमवर्क वुड नॉट चेंज. दैट फ्रेमवर्क इज़ देयर, बट इट नीड्स टू बी क्रिएटेड. कौन बेनिफिशियरी है, कितना एक्सटेंड ओनरशिप है, उसको कैसे अपस्किल करना है सो दैट ही और सी कैन फील बीइंग द ओनर. That would not change. Third is that while doing so, there has to be enough governance mechanisms so that we can monitor the progress. अगर प्रोग्रेस मॉनिटर करें, इम्पैक्ट मॉनिटर करें, देखें कि कहाँ डिविएशंस हो रहा है, एंड एजाइल इनफ कि उसको फिर से एडजस्ट करके ट्रैक पे लेके आए, वो फ्रेमवर्क सही है. बट किस मोड पे उसको टर्न करना है, कहाँ पे दोज डिज़ाइन एलिमेंट्स डालने हैं, इट वुड बी कॉन्टेक्चुअलाइज कि अगर आज उड़ीसा है तो उड़ीसा का क्या प्रेरोगेटिव है, उसी हिसाब से कॉन्टेक्चुअलाइज होगा. एंड सिमिलरली फॉर एनी अदर क्लाइंट और एनी अदर सेक्टर ऑल टुगेदर. सो आई वुड से अगर ये तीन चीज़ हम देखें कि विद दोज फ्रेमवर्क्स की हम एक सस्टेनेबल चेंज अगर इम्पैक्ट में लेके आना चाहते हैं, वन, ऑफ कोर्स इट हैज़ टू बी बेनिफिशियरी लेड. It has to see the light of the day with market based approach. It has to see the light of the day beyond the program. कि ऐसा नहीं कि
आज हम एक कंसल्टिंग फर्म है या सोशल इम्पैक्ट फर्म है, हम आगे, उसके बाद फिर वो प्रोग्राम बंद हो गया, हमारे जाने के बाद वो प्रोग्राम चलना चाहिए. ठीक बात है. And then, of course, there has to be certain governance mechanism which would stay beyond the program. And then it becomes a sustainable overall ecosystem, because this entire elements, and there are various other elements भी हैं, वो सब मिला के एक ओवरऑल इकोसिस्टम अप्रोच बनाते हैं, जिससे कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे वो फार्मर लेड प्रोग्राम हो या एंटरप्रेन्योर लेड प्रोग्राम हो, इट मेक्स इट सक्सेसफुल. एंड वी हैव सीन दैट. अगर मैं PSFPO की बात करूं जो हम उड़ीसा में कर रहे हैं, हमारे आने से पहले वही FPO जितने भी, it took time, it is taking time in FPO ecosystem. सिर्फ 11% फार्मर पार्टिसिपेट कर रहे थे इन द FPO बिजनेस, अभी 40% तक आ गए हैं, बिकॉज इट इज़ बीइंग ड्रिवन बाय देम ओनली विथ ए ओवरऑल सस्टेनेबल इकोसिस्टम, ताकि अगर कल को हमारा प्रोग्राम खत्म भी हो गया, वो 40 से आगे जाएंगे, पीछे नहीं जाएंगे. ठीक बात है. राइट राइट. योर आंसर shows that you have a very deep understanding of I'm what still learning. exactly. I'm still learning. No. That was a very good answer, I must say. As you mentioned, अभी हमारी बात हुई कि palladium, education, agriculture, health, बहुत सारे सेक्टर्स में है. तो इतनी डाइवर्सिटी में आप अपने मिशन को कोहेरेंट कैसे रखते हो without losing its essence? And I love giving example of India. India with diverse cultures, 1.4 crore million people, still coherent and still cohesive. Right. Learning from that. And why? Because the underlying theory is that as in whether it is Vasudhaiva Kutumbam or whether it is world as one family or any other principles on which India stands still. On a similar line, if we talk about Palladium, our ethos is that lasting sustainable impact. हम कोशिश करते हैं कि हर एक प्रोग्राम में वो एलिमेंट को पहले प्रेरोगेटिव दिया जाए, सो दैट इट बाइंड्स ऑल अदर सेक्टर्स. कोई भी आप सेक्टर लेंगे, अगर हम इम्पैक्ट ओरिएंटेड फोकस करते हैं ऑन प्रोग्राम को वैसा ही डिज़ाइन करते हैं, इट स्टेज इन ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैनर. सो एंड हेंस वी क्रिएट इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस, वी क्रिएट डिज़ाइंस, ताकि इम्पैक्ट शुड बी आवर फोकस, एंड दैट्स वेयर दैट कोहेरेंस इज देयर. इतने सारे सेक्टर्स में काम करने के बाद क्या आपको ऐसा लगता है कि there's, if you had to choose one sector, कि इसमें सबसे ज़्यादा स्केल है, सबसे ज़्यादा काम है, सबसे इम्पोर्टेंट है, तो कौन सा सेक्टर लगता है आपको? Because there's always a fight between, I've seen personally that there's always a fight between health and agriculture. Look, as in अगर दोनों सेक्टर आपने बात किया, एग्रीकल्चर हैज़ बीन आवर ब्रेड एंड बटर सिंस लास्ट 60 years. When I say agriculture, not limiting to smallholding farmers, but overall agri-allied sector, livelihoods in the agri-allied sector, private sector development in the agri-allied sector, private sector कैसे उसको embed करे in that, smallholding farmer का problem, agri-financing problem, तो entire agri-allied sector. And health has been one of our strongest pillars since last 60 years. अगर आप बताएं कि which are 2 sectors or 3 sectors which excites us more, it is related to that, but I would bucket in a very different manner. One is livelihoods, whether it is agri livelihood, non-agri livelihood, doesn't matter. And जब मैं livelihood आता हूँ, I am not only talking about मैं फार्मर को थोड़ा ट्रेनिंग दे दूँ, उससे मुझे एज इन द ऑब्जेक्टिव इज दैट अगर ट्रेनिंग से उससे कुछ फ़ायदा होता है, कंटिन्यूटी होता है, दैट मेक्स सेंस. सो वी ब्रिंग द प्राइवेट सेक्टर, वी ब्रिंग द फार्मर इन टू द एंगल. When we talk about livelihood is one sector. The second sector is climate. We are one of as in there are couple of programs हम disaster management में काम कर रहे हैं globally, and we and at the grassroots level, whether it is mitigation, whether it is preparedness, whether it is humanitarian response also, and pivoting to nature, forest based livelihoods, forest based ecosystem. So that climate and nature is the second I would say best sector where we need to work. So ये दोनों अगर हम, health of course is a sector which we have been working globally, but at this current time our focus as a firm in India is the livelihood, the nature part of it. And one thing which we do most across all programs is governance, improve governance across programs, whether it is health, whether it is transport, whether it is cities. So these are the 3 areas we are focusing right now, and which is more exciting. New developments हो रहे हैं इस sector में. Right. आपने एक बार कहा था कि impact is not an afterthought, it's the starting point. Am I right? Yeah. इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन करें अगर, तो रियल इम्पैक्ट आपके लिए क्या होता है और कैसे मेजर करते हैं आप? As in, this has been a good learning for me in the last 6 years. As in,
में while in my previous firm I was doing programs which also contributed to impact. Yeah. But जब ये firm join किया then impact was the primary focus. इसीलिए ख्याल आया कि ये आफ्टर थॉट नहीं है, कुछ भी काम करो पहले इम्पैक्ट ढूंढो भाई. सो अगर कुछ डिज़ाइन आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो वी स्टार्ट कि भाई व्हाट प्रॉब्लम स्टेटमेंट वी आर सॉल्विंग, व्हाई आर वी सॉल्विंग, उससे इम्पैक्ट क्या होगा. वी डोंट डिस्कस कि आउटपुट क्या निकलेगा, मुझे ये DPR बनाना है, मुझे ये प्रेजेंटेशन बनाना है, मुझे ये ट्रेनिंग करना है, डेफिनेटली वो करना है, बट दैट इज़ द सेकेंडरी. पहले कि कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करें, उससे फ़ायदा क्या होगा, इम्पैक्ट क्या आएगा, एंड वो इम्पैक्ट के लिए आउटकम क्या आएगा, वो आउटकम के लिए आउटपुट क्या आएगा, वो आउटपुट के लिए क्या एक्टिविटीज़ करना है. सो इट इज़ नॉट एन आफ्टर थॉट, इट इज़ अ फर्स्ट प्राइमरी फोकस. That understanding has changed. I'm still learning in the process. In last 6 to 7 years, that understanding has changed. That how this organization is seeing impact. Yeah. Hence that quote came in. And मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ. जब हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, एक प्रोग्राम है स्प्रिंग करके, USAID फंडेड प्रोग्राम था, 10 कंट्रीज़ में चला. हम थोड़ा सीखे उससे. और देन उड़ीसा में हमें 2 साल पहले एक प्रोग्राम मिला स्वकल्प, जहाँ पे हमें बोला गया कि 10,000 एंटरप्रेन्योर्स को आइडेंटिफाई करो एंड देन उसमें से 1,000 को आप एंटरप्रेन्योर बनाओ. तो और फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट भाई कैसे उसका इम्पैक्ट कैसे आएगा. ट्रेनिंग तो हम दे देंगे, हमें पैसा मिल जाएगा, बट उसके बाद अगर प्रॉपरली हैंड होल्ड करके डिज़ाइन प्रोग्राम को डिज़ाइन नहीं करें तो वो ट्रेनिंग के बाद वो फिर से again there would be square one. So we designed the program thinking कि वो 1,000 को कैसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाए. दैट इज़ माई फर्स्ट बेसिक पॉइंट. जैसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट सेक्टर में थियोरी ऑफ चेंज, दैट वाज माई ट्रू नॉर्थ. एंड उसके बाद हमने उसमें क्या इनिशिएटिव करना है, उससे क्या आउटपुट निकलेगा, उससे क्या आउटकम निकला, दिस ऑल फॉलोड. एंड आई मस्ट से दैट जब हम शुरू किए थे वो प्रोग्राम में हमें बोला गया था कि 10,000 ट्रेन करो, 1,000 को एंटरप्रेन्योर बनाओ, उसमें से 25% वुमेन एंटरप्रेन्योर होने चाहिए. बाय द एंड ऑफ द प्रोग्राम बीच में हम 93% आ गए, बट बाय द एंड ऑफ द प्रोग्राम इट वाज 75% वुमेन. 75%. बिकॉज इट हैज़ बीन डिजाइंड विद दैट ट्रू नॉर्थ कि मुझे इम्पैक्ट कैसे अचीव करना है. एंड राइट नाउ almost out of that 1,021 nano entrepreneurs, they have started employing 700-800 people of their own. They all are earning on an average 30,000 per month sales. So that's the impact we chased right at the start of the program कि ये program के impact indicators क्या होंगे. Then we went back to design and वो last में जो नॉर्मली क्लाइंट स्कोप देता है वो स्कोप में लास्ट में पहुंचे कि ओके इनको ये एक्टिविटीज़ करना है. बट वी स्टार्टेड दैट एंड दैट्स व्हाई आई रीइटरेट एंड दैट्स बीन अ गुड लर्निंग फॉर मी इन पास्ट 6-7 years that impact is not an afterthought, it is the first primary focus. That is honestly one of the best answers I've received from a guest My pleasure. on this podcast. My pleasure. And इतना अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं. इसमें मेरा बस एक क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को सपोर्ट किससे मिलता है. व्हेन यू वर्क विद द गवर्नमेंट, आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है, लाइक इफ वी टॉक फाइनेंशियली, So most of the जैसे ये जो प्रोग्राम्स करते हैं, मतलब इसका बैकअप क्या है आपके पास? So we are a for-profit organization. We do programs for government. As a client, we do programs for donor agencies, whether it is Gates Foundation or others. We do program for bilateral donors, whether it is UK aid, DFAT or Australia aid or USAID. We do program for multilateral agencies like World Bank and ADB. Defined projects also. Okay. And जितने भी मैंने बोला अच्छा काम, एज एन इट्स नॉट दैट हम मिस्टेक भी नहीं करते, गलतियाँ होती हैं, फिर सुधारते हैं, फिर समझते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर से उसको सुधारते हैं. बिकॉज दैट्स द इथोस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि भाई हमें अगर इम्पैक्ट करना है, वी बी अजाइल टू कोर्स करेक्ट क्विकली. गलती तो होना एक अपनी जगह है, बट यू नो आई रियली लाइक द थॉट दैट यू स्टार्ट with the idea that impact should be the first priority. ऐसा नहीं कि हर प्रोजेक्ट में हो पाता है, कुछ प्रोजेक्ट में मिस हो जाता है, अंदर बोलते हैं यार हम और थोड़ा बेटर करते तो अच्छा होता. बिकॉज कुछ प्रोजेक्ट्स के कंपल्सन्स भी होते हैं कि इतना स्पेस नहीं होता है डिज़ाइन करने के लिए, बट जहाँ मौका मिलता है इट इज़ एम्बेडेड और वी आर ट्राइंग टू एम्बेड इन द इथोस. एनीवे इट इज़ एम्बेड इन द इथोस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट ट्राइंग टू एम्बेड इन इथोस ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन. दैट आप ऐसे ही सोचिए
सोचेंगे करेंगे, देन ऑटोमेटिकली इट गेट्स इनटू अ मसल मेमोरी कि दिस इज Yeah. वे यू थिंक. राइट. Okay. भी जैसे कि हमने बात करी थी कि आप एडटेक में भी थे, एंड आई थिंक फॉर अ प्रोजेक्ट उसी से ही रिलेटेड सवाल है कि एक इस प्रोजेक्ट में आई थिंक नासिक में 80+ म्यूनिसिपल स्कूल्स जो है वो स्मार्ट बने थे आपके इस प्रोजेक्ट से. ट्रूली इंस्पायरिंग. पर आपको ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी ही सब कुछ है या कुछ और गैप्स है जो आप इग्नोर कर देते हैं जब हम स्मार्ट सॉल्यूशंस की बात करते हैं? सो थोड़ा ब्रीफिंग दे देता हूँ इस प्रोजेक्ट में. ये इट वाज अ Of course. प्रोजेक्ट जहाँ पे नासिक में हम स्कूल एजुकेशन जो नासिक के स्कूल्स हैं उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं. अगेन आवर विजन वाज टू ओवरऑल अचीव ए लार्जर इम्पैक्ट एंड ट्रांसफॉर्म द ओवरऑल म्यूनिसिपल स्कूल्स. बट समहाउ बाय द टाइम वी डिज़ाइन द प्रोग्राम वो फोकस आ गया कि उसको खाली टेक्नोलॉजी एनेबल्ड स्कूल करना है, स्मार्ट स्कूल. द नेक्स्ट फेज वुड कम लेटर. तो उसमें से हमने स्मार्ट स्कूल 80 स्मार्ट स्कूल बनाए अंडर द स्मार्ट सिटी फंड, हेल्प्ड नासिक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन टू अचीव दैट. कमिंग बैक टू द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन, आपने जो पूछा कि टेक्नोलॉजी, येस टेक्नोलॉजी इज मस्ट in this fast changing world with AI coming in every day. It is upgrading. Technology must, but it is an enabler. It has to enabler to improve productivity, to improve efficiency, to make us focus on where our entire energy should be. राइट. And that's my belief. And जब हम टेक्नोलॉजी को enabler करते हैं, so who is going to enable that? The human who will be using it. So if that technology को हम properly adaptable नहीं बना पाए, then no matter what technology we are aiming at, it is not going to solve the purpose. राइट. Example, आप ही के फील्ड एज एन फ्रॉम एग्रीकल्चर स्टैंड पॉइंट, आई थिंक लास्ट 10-15 साल से लॉट ऑफ क्रॉप वेदर एडवाइजरी सर्विसेज उभर के आ रहे हैं, विच इज़ हेल्पिंग द फार्मर्स टू अ ग्रेटर एक्सटेंट. Right. बट अगर वो जितने भी एप्लीकेशन, डैशबोर्ड, मोबाइल ऐप्स आ रहे हैं, अगर वही फार्मर उसको यूज़ करना जानते ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है उनका. सो despite having the best of the best technologies, if the technology जिसके लिए बना है वो उसको अगर अडेप्ट कर नहीं सकता तो उससे फ़ायदा क्या है? And मेजर पॉइंट आपका एक तरीके से ये है कि टेक्नोलॉजीज तो आ रही हैं बट टेक्नोलॉजीज फार्मर यूज़ नहीं कर पा रहा है. नहीं, दैट इज, आपने क्वेश्चन पूछा कि स्मार्ट स्कूल एंड हाउ एग्जैक्टली इट वुड स्केल अप. तो नो, दैट इज जस्ट वन एग्जांपल एग्जांपल इज दैट अगर टेक्नोलॉजी आ रहा है उसको अडेप्टेबल बनाना इज Adaptable नेसेसरी. बनाना is necessary. उसको एज एन एम्ब्रेस करना इज वेरी मच नेसेसरी. खाली टेक्नोलॉजी आने से सॉल्यूशन नहीं होता है. एंड यही स्मार्ट स्कूल में हमारा हुआ जब हम इस 80 स्मार्ट स्कूल में स्कूल्स में स्मार्ट इकोसिस्टम लगा दिए. और नेक्स्ट चैलेंज इज दैट वो इंटरनेट आ गया, स्मार्ट वो ब्लैक बोर्ड्स आ Classrooms, गए, yeah. बट आर द टीचर्स enabled to maintain that and pass on the benefit of that smart school to the students? Yeah. Hence we designed that program. ऐसा नहीं कि हमने टेंडर बना दिया, कोई एक वेंडर आ गया, एडटेक सिस्टम लगा दिया. वी ऑल्सो हैड फोकस कि हम टीचर्स को एनेबल करें, उनको फैसिलिटेट करें, उनको ट्रेन करवाएं. उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हुआ होगा. सो इट वाज व्हाइल इट वाज इनिशियली डिजाइंड कि खाली भाई आप स्मार्ट क्लास रूम बना दीजिए, देन वी एम्बेडेड कि उससे खाली काम नहीं होगा. We have सिखाना to पड़ेगा. embed we have to facilitate, we have to embrace that technology so that it is working as a right enabler. And that is where, whether it is education ले लीजिए, agriculture ले लीजिए, or there are fantastic technologies coming in, which is very No very doubt. much needed. Yeah. Or for that matter in corporate sector भी बता दीजिए. If we are not using it, we are not enabled to use it, those technology would not be helpful. And that is my limited point in this. And technology is must. Yes. We need to embrace it as fast as possible. So the question was कि इसमें क्या कोई गैप है अपार्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी. तो उसका आंसर जितना मैं समझ पाया वो यही है कि टेक्नोलॉजी आना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है, बट टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाना, दैट इज एम्ब्रेस कर पाना, उसके लिए कहाँ गैप है उसमें काम करना. अगर कैपेसिटी बिल्डिंग का गैप है उसमें करना, या टेक्नोलॉजी को और सिंप्लीफाई करना ताकि मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे फार्मर वो इतना टेक्नोलॉजीज सेवी नहीं है कि वो वेदर एडवाइजर यूज़ कर सकते, तो मैं सिंप्लीफाई करके वो टेक्नोलॉजी को कैसे पहुंचा पाऊँ, वो ज़रूरी है. ये टेक्नोलॉजी से डैशबोर्ड आ रहा है बट मेरे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या जो प्रोसेस में बैठे हैं उसको एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी, तो उसको कैसे एफिशिएंट डैशबोर्ड बना पाएँ. सो टेक्नोलॉजी इज़ मस्ट बट इट नीड्स टू बी अडेप्टेबल टू द यूज़र्स. सो फोकस उस तरफ भी रहना चाहिए. ठीक बात. सर, आपके एक्सपीरियंस में सबसे बड़ा
डिस्कनेक्ट क्या होता है जब हम रूरल कम्युनिटीज़ में टेक या डेवलपमेंट इंटरवेंशंस लेके जाते हैं, और उसको ब्रिज करने के लिए आपका अप्रोच क्या होता है? In fact, the answer is in the question itself, as an intervention लेके जाते हैं. No, we should not go with a solution to the community. पहले उनको problem को समझिए. So the solution should not precede the problem. Go to that problem समझिए, then design your solution. That is one, I would not say big disconnect, that is one approach which should take. That is number one. Number two is that जब वो solution design कर रहे होंगे after understanding the problem, as मैंने पहले भी कहा है, community should be at the core. Whether it is any beneficiary communities, they should be at the core. They should be part of your design. कभी क्या होता है, हम solution बना देते हैं, भूल जाते हैं कि community part ही नहीं है. जैसे हमारा एक प्रोग्राम है पेरू कोको अलायंस, हम एक यूएसएड का प्रोग्राम करते हैं, पार्टनरशिप फॉर फॉरेस्ट, जिसमें लगभग काफ़ी कंट्रीज़ के फॉरेस्ट मैनेजमेंट करते हैं. इट्स नॉट ए यूएसएड प्रोग्राम, पार्डन मी, इट्स ए एफसीडीओ प्रोग्राम, यूकेड का प्रोग्राम है, जहाँ पे पेरू में कोको प्रोडक्शन को प्रमोट करने का प्लान था. एंड कौन करेगा? वही फार्मर करेंगे. बट वहाँ पे तो कोकेन प्रोडक्शन हो रहा है, तो कोकेन से वो कैसे शिफ्ट होंगे? बिकॉज हमारा प्रॉब्लम था, वही कोको का एक सोल्यूशन लेके जाएंगे, तो रियलाइज दैट ग्राउंड रियलिटी इज कम्प्लीटली डिफरेंट, बिकॉज द वैल्यू दे गेट फ्रॉम कोकेन इज मच हायर देन कोको, एंड द इकोसिस्टम बैठा हुआ है. देन वी डिजाइन दैट सोल्यूशन लुकिंग एट द ग्राउंड रियलिटीज, कीपिंग द फार्मर्स, देयर फार्मर्स एट द कोर, कि भाई अगर उनको कोको प्रोड्यूस करना है विच वुड हेल्प इन अफॉरेस्टेशन, क्यों करेंगे वो? अगर वो वैल्यू कोकेन से ज़्यादा मिले, ऑटोमेटिकली वो करेंगे. देन द एंटायर प्रोग्राम डिज़ाइन चेंज हुआ कि वो जो कोको का वेराइटी है करेंटली उस वक्त का, वो 20th वेराइटी था, उसको नंबर 1 वेराइटी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा सो दैट मार्केट से ज़्यादा प्राइस फेच हो. इज़ मार्केट रेडी फॉर सच काइंड ऑफ कोको? मार्केट को भी रेडी किया. जब ये ओवरऑल इकोसिस्टम चेंज हुआ, उनको भी लगा यार अगर ये कोको में प्रोड्यूस करता हूँ तो कोकेन से ज़्यादा आएगा, प्लस आई एम नॉट डूइंग समथिंग इलिसिटिक कोकेन फार्मिंग, प्लस इट इज़ गोइंग टू हेल्प माई फॉरेस्ट विच इज़ माई लाइफ. तो उनके लिए जैसे हमारा इथोस है, अगर फॉरेस्ट को बचाना है, बाकी कुछ इंटरवेंशन नहीं है, वो कम्युनिटीज़ को ही बचाइए, वही फॉरेस्ट को बता देंगे. सो गोइंग विद ए प्री डिफाइंड प्रॉब्लम इज़ वॉट, सॉरी, प्रीडिफाइंड सोल्यूशन इज़ व्हाट वी वुड नॉट लाइक टू डू. हम भी गलती करते हैं, बट द पॉइंट हियर इज़ दैट द सोल्यूशन शुड नॉट प्रीसीड द प्रॉब्लम, इट शुड सक्सीड दैट. प्रॉब्लम समझिए, देन सोल्यूशन डिज़ाइन कीजिए, बेनिफिशियरी को कोर में रखिए. सेकेंड पार्ट हियर इज़ दैट जब भी कोई सोल्यूशन डिज़ाइन करें, प्लीज़ अंडरस्टैंड द ट्रेडिशनल एस्पेक्ट ऑफ इट, बिकॉज कोई भी कंट्री हो, कोई भी ज्योग्राफी हो, ट्रेडिशनली दे हैव बीन सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम. ऐसा नहीं कि हम पहले आके वो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं. दे हैव बीन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स इन ओन ट्रेडिशनल वे. येस, थिंग्स आर चेंज, वेदर इट इज़ क्लाइमेट चेंज और प्रोसेस एफिशिएंसी आ गए हैं. द अप्रोच टू सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम हैज चेंज्ड, बट दे हैव बीन डूइंग दैट फॉर गुड नंबर ऑफ ईयर्स. राइट. तो इफ़ वी कैन एम्बेड वो जो ट्रेडिशनल अप्रोच को एम्बेड करके हमारे नए सोल्यूशन में लाएं, इट वुड बी मोर सस्टेनेबल, because on a regular basis they would use it because they have been using it for others. And third part here is that जो disconnect है कि it is not कि अगर हम problem कर रहे हैं rural livelihoods के लिए we should go with a socialistic approach कि नहीं मैं उनका भला करूँगा और कुछ नहीं करूँगा. No, it has to be a collaborative environment. It is no problem or no solution would be sustainable अगर मैं 3 या 4 एक्टर का collaboration नहीं कर पाया, whether it is government as a moderator, private as the catalyst player and beneficiary at the core at the main user. सो ये 3 या 4 चीज़ मैं सोचता हूँ, इट इज़ नॉट ए डिस्कनेक्ट, बट द फोकस शुड बी देयर सो दैट वो डिस्कनेक्ट ना बने. ऑन दैट्स माय व्यू ऑन इट. ओके, आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू. कोई एक मोमेंट या स्टोरी जब आपको ऐसा लगा कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं और जिसने आपकी लीडरशिप या पैलेडियम की स्ट्रैटेजी को रीथिंक करने में मजबूर किया? इफ this has ever happened? No, it happens every time. As in, and Palladium क्यों, अगर मैं generalize उसको करूँ, COVID changed the entire approach. Everybody changed their direction. Now with this recent US tariff wars, it is changing. Yeah. So it's not just in a corporate room. जब प्रोजेक्ट के पर्सपेक्टिव से भी देखें कि हमें लगता है कि भाई जो हम अप्रोच ले रहे हैं, that has to change to achieve that larger outcome, impact. And बहुत सारे ऐसे
डायरेक्शन चेंज होते हैं एट ए कॉर्पोरेट लेवल एंड एट ए प्रोजेक्ट लेवल। एंड मैं प्रोजेक्ट लेवल का एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे मैंने बताया कि हर एक प्रोग्राम हम जब करते हैं हम इम्पैक्ट फोकस करते हैं। वी नीड टू एंश्योर दैट जेंडर इन्फ्यूज़न क्लियरली हो, सो दैट देयर इज़ अ जेंडर इंक्लूजन इन अ प्रॉपर मैनर। ग्लोबली भी हमारे हर एक प्रोग्राम में देयर इज़ अ ग्रेट जेंडर इंक्लूजन एस्पेक्ट। जब हम इंडिया में एक बड़ा प्रोग्राम कर रहे थे जिसमें 3 लाख फार्मर को ट्रेन करना था महाराष्ट्र में, बिहेवियरल चेंज में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, उधर भी वुमेन वी आवरसेल्फ टारगेट कि एटलीस्ट 30% वुमेन तो हम टारगेट अचीव करेंगे। एंड वी वेंट विथ अ स्टैंडर्डाइज अप्रोच ऑफ मॉड्यूल प्रिपरेशन वगैरह वगैरह। देन आफ्टर फेज 1 वी आर रियलाइजिंग द इनटेक ऑफ वुमेन एंड वेरी लेस, नहीं हो पा रहा है। देन वी वेंट टू ग्राउंड टू अंडरस्टैंड हो क्यों नहीं रहा है, बिकॉज देन वी आइडेंटिफाई फ्यू फैक्टर्स। द ट्यूटर्स आर मेल, the odd hours जब हम timing of training are such odd कि women from a rural family might not come, the location is far enough, पास में अगर मंदिर में बुलाए तो आ सकते हैं और कहीं जाए तो नहीं आ सकते हैं। सो वो सब फैक्टर्स को हमने ट्विक किया एंड ऑफ कोर्स वी सॉ ड्रास्टिक रिजल्ट इन फेज 2 एंड फेज 3। बाय द टाइम वी completed the program the women intake was absolutely fine and hence that course correction was made। एंड जब मैं पिछले क्वेश्चन आप जो पूछ रहे थे, मैंने हमारे एक नैनो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जो उड़ीसा में हमने किया, हमने बोला कि 95% पहुंच गए थे। फाइनली अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 25% वुमेन इनटेक वी अचीव 75%। दोज लर्निंग्स वी एम्बेडेड, जो सीख लिया उसी को एम्बेड किया। जैसे आपने बोला क्या आउटग्रो किया, वी डोंट आउटग्रो एनीथिंग, वी ट्राई टू सी रीलीव दैट एक्सपीरियंस जो हमने ऑलरेडी कर लिया है। सो कोर्स करेक्शन तो होते रहते हैं एट ए कॉर्पोरेट लेवल एंड प्रोजेक्ट लेवल, एंड दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ इट। ओके। आजकल के टाइम पे एक चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस हो जाए विच इज़ स्केल। हर चीज़ हम चाहते हैं स्केलेबल हो, लेकिन एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर में हर गांव की एक अलग स्टोरी होती है। सो हाउ डू इंश्योर कि स्केल के चक्कर में लोकल नुएंस ना लूज हो? I have already answered a part of it in previous question. Scale is important as in अगर इंडिया की बात करें with 1.4 billion population, it is very very important. Yes. And जो इंडिया में चल गया वो देश भर में चलेगा because of the chaosness, because of the volume of diverse culture, because of the challenges we have with such kind of population. So India is the only place जहाँ पे वो स्केल ज़रूरी है एंड डेमोन्स्ट्रेट करना भी ज़रूरी है। चाहे आप गवर्नमेंट के बड़े प्रोग्राम्स ले लें, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, इट डिडंट स्टार्ट विद अ स्मॉल, मैं एक छोटा सा पायलट करूँगा, इट स्टार्ट विद अ लार्ज स्केल। या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हमारा हर घर जल प्रोग्राम है, इलेक्ट्रिसिटी देने का प्रोग्राम, इज ऑल आर लार्ज स्केल प्रोग्राम्स। So that definitely scale is important for Indian context, because there are so much to be done to achieve that India growth story. Yes. And जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, उसको बनाने के लिए तो स्केल तो ज़रूरी है, बट स्केल के साथ दैट स्पीड इज़ ऑल्सो नेसेसरी। एंड कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, व्हेन यू सेड उसको स्केल के लिए ज़रूरी क्या है, as I highlighted in some of my earlier question, it has to be embedded with बेनिफिशरीज एट द कोर। जहाँ पे हम जैसे प्लेयर्स हैं, वी शुड बी अ कैटलिस्ट, नॉट एट द ओनर ऑफ द चेंज। द ओनर ऑफ द चेंज वुड बी दैट बेनिफिशरी जो वो सस्टेनेबिलिटी लेके आए टू स्केल इट अप। राइट। इट हैज़ टू अगेन एम्बेड दैट ट्रेडिशनल अप्रोच, जो भी ट्रेडिशन से उसको अप्रोच करके उसको इम्प्रूव किया जाए। दैट is the second part to ensure that we achieve that scale. Third, without collaborative, whether it is a public, which is the communities or beneficiaries, whether it is a private sector and the government sector, without that tripartite collaboration or any other stakeholders, it is not going to happen. And अगर आप simple example देखें, India is hailed for their vaccine strategy. It was not just the scientific community creating the vaccine. It was not just the governance mechanism of government ensuring it went through. It was also the civil society organization who ensured that the campaign was through to achieve vaccination of 1.4 billion people in a record time. और elections ले लीजिए. So it has to be a collaborative approach, embracing the traditional technologies or processes and making the beneficiary. In this case, let's say election है तो इलेक्ट्रेट, वैक्सीन है तो
as in we all are citizens at the core to own that solution, then it becomes a sustainable scalable change. जैसे हम हमारे as in we have a tagline that speed, scale and dare to change. That's where and we are at the cusp of that revolution in India, and these things would matter a lot. One last question. अगर आपको डेवलपमेंट वर्क फ्यूचर में री इमेजिन करना हो तो एक चीज़ जो हमें इमीडिएटली बंद करनी चाहिए और एक चीज़ जो हम सबको एम्ब्रेस कर लेनी चाहिए, वो क्या है? Immediately बंद करनी चाहिए, as in everybody is in the process of doing it, is don't come with a predefined mindset कि मुझे तो ये solution fit करना है. One solution doesn't fit all, and in Indian context definitely not. Exactly. Because of the इतने diversity, diversity इतने है, challenges problems है, के अलग अलग solutions हैं. वही solution को it has to be curated. So Yes. don't come with a predefined mindset. Yes. You might have a solution, very good, it is a good start कि आपके पास सोल्यूशन आ गया है प्रॉब्लम का, बट थोड़ा जाके ग्राउंड में प्रॉब्लम को समझिए एंड देन सोल्यूशन को क्यूरेट कीजिए. वी आर नॉट, आई एम नॉट एडवोकेटिंग स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एवरी टाइम. यूज दोस फ्रेमवर्क्स, यूज दोस सोल्यूशन, बट क्यूरेट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द ग्राउंड रिलेटेड. एंड Right. वी ऑल्सो डू दैट एक्सरसाइज. कभी हम गलती से सोल्यूशन लेके चले आते हैं, देन वी गो बैक एंड से नहीं, प्रॉब्लम क्या है पहले समझ लेते हैं, उसके बाद वी गो बैक. सो दैट्स वन बिग नो विच इज, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम एक्सपर्ट इन दैट, वी आर स्टिल लर्निंग इन दैट प्रोसेस टू डू दैट. एंड बिग येस हमें करना चाहिए. Again, the answer lies in your question, embracing that collaborative environment. It is impossible to solve the problem all alone. अगर एग्जाम्पल हम, अगेन आई वुड रिपीट बैक टू द नैनो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम. हमें जब प्रोग्राम का मैंडेट लिया था, द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम वी आर 3 पार्टनर्स. एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम हैड 40 पार्टनर्स. हमने एक इकोसिस्टम पार्टनर बनाया ताकि हमारे जाने के बाद भी द प्रोग्राम शुड रन ऑन इट्स ओन. Yes. So it has to be a collaborative environment to achieve that, with a government, with a private, with a civil society, Yeah. and many other players. Right. Whatever the need of the program, not necessarily हर जगह में 10 पार्टनर बने या 40 पार्टनर बने, जो भी needed has to be in a collaborative manner, keeping in eye that beyond the program there has to be life. So that these are two things which, from a yes and a no, which I feel as development practitioners or consulting fraternity, whatever we may be called as, should embrace upon. Very good answer. Now I just have one last phase of this interview, of this podcast, which is a rapid fire round. Oh, I'm just going to ask you 4 questions. let me try to give the best ones. Number 1. One book that changed your mindset or you love the most. Any book. Quite a few books, but to you had mention to choose one. of them, Alchemist is one by Paul Coelho. Okay. Jonathan Livingston's Seagull, and I love reading Chanda Mamas. Ah, अब मिलता नहीं है, but I love them. okay. One mistake leaders should make at least once. I should say they should make it again and again is delegate. जब काम डेलीगेट करते हैं मिस्टेक होता है, हम खुद सीखते हैं और हम अपने पीयर्स को और अपने जूनियर्स को, अपने रिपोर्टीज को एम्पावर करते हैं. That gives you room to improvise. Absolutely. So I would love to do that mistake again and again and again and learn. Right. Delegate and delegate. If not business, if not private sector, what alternate life would you be living? Look, as in प्राइवेट सेक्टर में ना होते तो अभी क्या कर रहे होते? मेरा थोड़ा सोच अलग है इसमें. एज इन आई ऑलवेज गो विद द फ्लो ऑफ माई लाइफ, एंड देयर हैज बीन मेनी टिपिंग पॉइंट्स इन माई लाइफ. जैसे बचपन में कभी इंसान डिसाइड करता है कि मुझे ऐसा हाँ, करना है, कभी या आपके नेचर से कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन ऐसे अलाइंड हो? आई लव टू बी इन इंडियन आर्मी, बट नहीं हो Oh, पाया. really? नहीं हो पाया, बट आई डोंट नहीं हो पाया? रिग्रेट Did you दैट. try? हाँ, of course I tried, I failed. Okay. And I learned Yeah. in that process. So if you talk about that, that's one wish which is unfulfilled, and I don't have any regrets to that, because I tried, I failed, I learned in that process. Hence, one learning is that I live with the flow of life. There are so many tipping points in my life, probably would have changed the direction which my Yeah. life has gone. But I respect how it has moved on its own. So But yes. I truly respect the fact that you wanted to join the Indian Army. Honestly, I truly respect that. Strategy or instinct, what wins in your world? In our world, it has to be a balanced approach of strategy with instinct. Yes. Most of the professionals should aim to have a balanced one.
At times it blends towards strategy, at times it lends towards instinct. You should aim for a balanced one. Personally, if I aspire for, अगर कभी balance lose हुआ, then I follow my instinct. Okay, that's a good answer. That concludes our podcast, sir. Thank you Thank you. so much for giving My us your pleasure. valuable time, and I'm sure that our viewers will learn a lot from this episode. My pleasure, Thank and you so much. I loved this session and look forward to learning more from this. Thank you so much.